In this video, we'll be doing the specific writs as we have already read that during the pre-independence era, the prerogative writs were being issued. That is for the supervisory purpose of the officials of the court and the official work. But later on, by the 44th Amendment in 1978, specific writs were being introduced in Article 226 of the Constitution of India. Now we will discuss one by one these specific writs. And these are named under the writ of habeas corpus, mandamus, uh, uh, prohibition, certiorari, and quo warranto. First of all, we will discuss the writ of habeas corpus. अब ये रिट है क्या? अब इसका लेटिन टर्म है यू मे हैव द बॉडी रिट इशूड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर टू पर्सन और अथॉरिटी. अब ये इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर इशू होएगी. अब किस किस को इशू हो सकती है? टू एनी पर्सन और टू एनी अथॉरिटी to call upon the person or the authority who detained the body to let him know by what authority he has detained that person. अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसे आ जाती है, सपोज कोई बंदा पब्लिक अथॉरिटी या किसी बंदे ने किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है, जैसे IPC 366 ए का मैटर है और किडनैपिंग के केसेस हो जाते हैं, या फिर किसी बंदे ने किसी अथॉरिटी ने एक बंदे को अरेस्ट कर रखा है या इलीगली डिटेन कर रखा है, तो वहाँ पे हेबस कॉर्पस रिट के थ्रू हम उस बंदे से पूछ सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव डिटेन दैट पर्सन और द बॉडी ऑफ अ पर्सन. तो मेन फोकस यहाँ पे हो जाता है इलीगल डिटेंशन का. व्हेन द डिटेंशन or the custody of that person is illegal. On illegal detention shown, order of release is made. Object क्या है? To give quick and immediate relief. Custody, where the custody or the person detained is in the private authority or the public authority. अगर प्राइवेटली उस बंदे को डिटेन कर रखा है या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने डिटेन कर रखा है, देन इन दैट केस हेबस कॉर्पस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट दैट प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी टू आस्क हिम बाय व्हाट अथॉरिटी ही हैज़ डिटेन दैट पर्सन. अब नेक्स्ट इशू यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ डेटिन्यू इन कोर्ट. जब रिट ऑफ हेबस कॉर्पस इज बीइंग heard, then whether the detinue is required to produce in the court or not during the hearing of the writ of habeas corpus. It is being held in Kanu Sanyal versus District Magistrate Darjeeling 1974 का केस है, where in it has been held that it is not essential that the production of the detinue in the court during the proceeding or the hearing of the writ of habeas corpus is must. अब नेक्स्ट इशू आ जाता है जो ये रिमांड ऑर्डर होते हैं, जो पुलिस कस्टडी में डिटेन किया जाता है बंदा फॉर द इंटेरोगेशन पर्पस. जो ये रिमांड ऑर्डर्स हैं, क्या वो वहाँ रिमांड ऑर्डर के थ्रू अगर कोई डिटेंशन होती है तो क्या वो इलीगल डिटेंशन मानी जाएगी और वहाँ पे क्या हेबस कॉर्पस की रिट इशू हो सकती है? तो वहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया नो, द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द रिमांड ऑर्डर. अब नेक्स्ट इशू आ जाता है हु कैन अप्लाई. फर्स्ट इज the person who is aggrieved or who is a detainee who is being detained illegally. He can question his custody through the writ of habeas corpus, and also any family friend any relative or friend of the aggrieved or the detainee can go for the writ of habeas corpus. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या टेक्निकलिटीज एंड लीगल नेसेसिटीज इन फाइलिंग द writ of habeas corpus is must or not. Court does not follow strict rule of procedure or pleading. Postcard addressed to a particular judge is a sufficient adherence to abide by the
by this rule. In great anxiety as to personal liberty of a person, it has refused to throw out a petition merely on ground that it does not show prima facie case. So technical and legal impediments are no impediment in allowing such petition. तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था ये 32 में और आर्टिकल 226 में कि स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू फाइलिंग द रिट ऑफ पिटिशन और फाइलिंग द पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 32 स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द रूल ऑफ प्रोसीडिंग इज़ नॉट अ नेसेसिटी. तो अब यहाँ पे ये भी है कि अगर इफ़ अ लेटर एड्रेस टू अ पर्टिकुलर जज इज़ ऑल्सो sufficient adherence to the rule of filing a writ of habeas corpus. अब next issue है in which cases it applies not only in illegal detention but also protecting a detainee from treatment inside a jail as in the case of Sunil Batra number 1 case. सुनील बत्रा का केस था जिसमें एक डेटिन्यू था, शायद उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में दिया था वो. तो वहाँ पे उसके साथ बहुत ब्रूटली उसको ट्रीट किया जा रहा था, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था. तो वहाँ पे भी उसने इस रिट के थ्रू रिड्रेसल लिया था. तो वहाँ पे भी टू प्रिवेंट द इल ट्रीटमेंट ऑफ अ डेटिन्यू के लिए भी writ of habeas corpus can be issued. When will it apply? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि writ of habeas corpus है, हम कहाँ कहाँ पे किन किन केसेस में अप्लाई करवा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पढ़ ही लिया कि इलीगल डिटेंशन जहाँ पे भी होएगी, जहाँ पे इलीगली डिटेन किया जाएगा. इलीगल डिटेंशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे 57 CRPC वायलेट किया जाएगा. 57 क्या कहता है कि वहाँ पे अगर सपोज़ कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है तो 24 आवर्स के अंडर उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना इज़ अ मस्ट. दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 57 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. अगर उसको वायलेट किया जाता है और उसको अरेस्ट करके उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास और फिर उसको डिटेन भी किया जाता है, देन इन दैट केस that detention will be declared to be an illegal detention. वहाँ पे writ of habeas corpus अप्लाई हो सकती है. और अब जो डिटेंशन लीगल कैसे होएगी? when the detention is by abiding the rule provided under article 22 of the constitution of India. अगर उसके अकॉर्डिंगली किसी को डिटेन किया जाता है then that detention will be a legal detention, otherwise it will be a illegal detention. अब made for अल्टीरियर और कोलेटरल पर्पस. तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है, सपोज़ कोई मैटर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है. अब पुलिस को चाहिए उस बंदे की कस्टडी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए. लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है 57 सेक्शन की, जहाँ पे रिक्वायर किया जाता है कि अगर अगर अथॉरिटी एक बंदे को अरेस्ट कर सकती है तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट हिम बिफोर द जुडिशल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट. तो उस केसेस में ये जो पुलिस है ये करती क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स में उसका अरेस्ट शो नहीं करती, उसको दे कॉल हिम अगेन टू द पुलिस स्टेशन एंड डू देयर इंटेरोगेशन एंड नॉट शोइंग द अरेस्ट इन द डॉक्यूमेंट्स. तो वहाँ पे उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी ये हो गया मेड फॉर अल्टीरियर और कोलेटरल पर्पस. अब यहाँ पे ये हो जाता है कि 24 आवर्स के बाद वो क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जहाँ पे इसको 15 डेज़ की पुलिस या जुडिशल कस्टडी मिलती है. अगर सपोज़ पुलिस कस्टडी नहीं मिलती तो वैसे केसेस में पुलिस ये हथकंडे अपनाती है. तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए भी अगर ऐसे अरेस्ट ना शो करते हुए उसको बार बार बुलाया जा रहा है और वो बंदा अवेयर है इन चीज़ों को लेके, तो वो हेबस कॉर्पस की रिट के थ्रू अपनी जो डिटेंशन है या फिर उसकी कॉलिंग है उसको क्वेश्चन कर सकता है. नेक्स्ट आ जाता है जो फैमिली मैटर्स होते हैं, जैसे सपोज़ कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड है. अब सपोज़ एक वाइफ है, उसने बच्चे की कस्टडी ले रखी है
सपोज़ लगा लो कि जैसे 5 साल के बच्चे की तो कस्टडी माँ के पास ही कंपल्सरी है, लेकिन बियॉन्ड दैट 5 इयर्स ऑफ द एज ऑफ अ चाइल्ड फादर की कस्टडी अराइज़ हो जाती है। अगर फादर प्रूव कर देता है अपने राइट को, तो वहाँ पे वो आफ्टर जुडिकेशन ऑफ हिज राइट he can he can apply for the writ of habeas corpus and can claim and can claim the custody of a child under that writ. अब ये जो writ की एप्लीकेशन है, हेबस कॉर्पस की एप्लीकेशन है, अगर नेक्स्ट इशू है कि हेबस कॉर्पस की एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है या फिर रिफ्यूज़ हो जाती है, तो इसकी अपील जाती है 132 आर्टिकल में, 133 में, 134 एंड 136 में इसकी अपील चली जाएगी, अगर रिट ऑफ हेबस कॉर्पस अप्रूव भी हो जाती है या फिर रिफ्यूज़ हो जाती है उस केसेस में। अब नेक्स्ट इशू है रिट ऑफ मैंडेमस। इट इज़ एन ऑर्डर बाय सुपीरियर कोर्ट टू द पर्सन और अथॉरिटी। अब ये जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये भी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर ही है। ये किसके अगेंस्ट इशू होएगी? ये बाय द सुपीरियर अथॉरिटी टू एनी पर्सन और अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लाइसेंस अप्लाई, ए ने लाइसेंस अप्लाई किया, आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, आपने पूरे सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करवाए, सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफ़िल की, लेकिन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस इशू नहीं कर रही, तो वहाँ पे थ्रू द रिट ऑफ मैंडेमस यू कैन गेट योर लाइसेंस इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस रिट। तो वहाँ पे अब इशू किसके होगी? या तो पर्सन यहाँ पे कौन कौन आ जाता है? जिसके पास अथॉरिटी है जो इशू कर सकता है डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस, मतलब कोई काम ऐसा जो उसकी स्टैट्यूटरी और उसकी पब्लिक ड्यूटी के अंदर। अब पर्सन यहाँ पे आएगा, पर्सन जिसकी पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी होगी, लीगल ड्यूटी के अंडर वो बाउंड है। तो वहाँ पे अब अथॉरिटी में आ गया कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं, अगर वो बाइंड बाय द स्टैट्यूटरी लॉ और पब्लिक अथॉरिटी है, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट ये रिट ऑफ मैंडेमस इशू हो सकती है। Now the next question is when the writ of mandamus lies on fulfillment of mandatory duty. अब ये जो पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी है who are bound by the statutory or public duty, if their duty is mandatory, then the writ of mandamus can be issued against that person or authority. Applicant must have the right to enforce public duty के अंदर अगर उसका राइट है तभी वो इन्फोर्स करवा सकता है पब्लिक ड्यूटी कास्ट बाय लॉ। अब जो पब्लिक ड्यूटी है उस पर्सन और अथॉरिटी के ऊपर, दैट शुड बी कास्टेड बाय लॉ। प्राइवेट राइट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अब प्राइवेट राइट में क्या हो गया, सपोज प्राइवेट पार्टीज़ हैं, ए और बी हैं, उनमें कोई इशू अराइज हो जाता है कि सपोज लगा लो कि ए ने कार बेची और उसने 50,000 दिए, तो अब वो उसने 50,000 पे कर दिया लेकिन कार नहीं। अब यहाँ पे उसकी ड्यूटी, ये इनका प्राइवेट मैटर है, तो ये रेगुलर सूट के थ्रू इनके राइट्स डिसाइड होंगे, यहाँ पे रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं होगी। तो रिट ऑफ मैंडेमस सिर्फ वहाँ इशू होती है जहाँ पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी और लीगल ड्यूटी आ जाती है, पब्लिक ड्यूटी आ जाती है, वहीं ही सिर्फ मैंडेमस की रिट इशू हो जाती है उस पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट इशू आ जाता है व्हेन द मैंडेमस रिट ऑफ मैंडेमस डज नॉट against whom the writ of mandamus does not apply. It does not lie when duty is merely discretionary in nature. अब सपोज कोई अथॉरिटी है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोई काम करे या ना करे, तो वहाँ पे कोर्ट इशू नहीं कर सकती जब exercise of that duty
is discretionary in nature, then writ of mandamus cannot be issued against that person or authority. अब अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अब कोई भी राइट अगर अराइज हो रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट टू कंपेल मॉरल्स साइंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। अब ये जो एजुकेशनल मैटर्स हैं, ये उस डिपार्टमेंट का मैटर है कि वो मॉरल साइंस को करिकुलर एक्टिविटी ऑफ स्कूल में इन्फ्यूज़ करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पे कोर्ट इशू नहीं कर सकती रिट ऑफ मैंडेमेंस, कंटिन्यूस मैंडेमेंस। अब जो ये रिट ऑफ मैंडेमेंस है, इसको कंटिन्यू ओपन छोड़ा जाता है। कोर्ट में कीप द मैंडेमेंस पिटीशन pending due to possibility of continuous mandamus being issued to monitor the earlier order being complied with or not। अब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ हमने अथॉरिटी को इन्फोर्स करवाने के लिए मैंडेमेंस इशू तो करवा ली, लेकिन वो अथॉरिटी है वो इन्फोर्स कर नहीं रही, फिर उसके बाद भी दोबारा एप्लीकेशन डाली जाती है उस ड्यूटी को इन्फोर्स करवाने के लिए। इसलिए कोर्ट क्या करती है, मैंडेमेंस की पिटीशन को पेंडिंग करके रखती है जब तक ड्यूटी फुलफ़िल नहीं हो जाती। ये हो गया हमारी 2 रिट। जो बाकी की रिट्स हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे।